نظام الدین صاحب پڑھیں۔ جی جی حضرت، جی حضرت، منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں منصرف وہ اسم ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے کوئی سبب اس میں نہ ہو، اور غیر منصرف وہ اسم ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے دو سبب اس میں موجود ہوں اور منع صرف کے اسباب نو ہیں: پہلا عدل، دوسرا وصف، تیسرا تانیث، چوتھا معرفہ، پانچواں عجمہ، پھر چھٹا جمع، ساتواں ترکیب، پھر آٹھواں وزن فعل، اور نواں الف اور نون مزید تان، جیسا کہ عمر میں عدل ہے، اور علم اور ثلاث اور مثلث میں صفت ہے، اور عدل اور طلحت میں تانیث ہے۔ حضرت ثلاث اور مثلث میں صفت ہے اور عدل اور طلحت میں تانیث ہے، اور علم اور زینب میں تانیث مانوی ہے، اور علم اور حبلہ بس میں بس تانیث بس ہے۔ بس 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 جی آگے ساتھی کون ہے جی؟ عبد الرحمان حیدر صاحب، آپ نے ایک دفعہ دہرائیں اس کو، عبد الرحمان صاحب۔ جی حضرت جی حضرت، منصرف اور ہوں، غیر منصرف کے بیان میں منصرف وہ اسم ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے کوئی سبب اس میں نہ ہو، اور غیر منصرف وہ اسم ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے دو سبب اس میں ہوں، اور منع صرف کے اسباب نو ہیں: عدل و صف و تانیث و معرفہ و عطمہ و جمع و ترکیب و وزن فعل و الف و نون مزید تان، جیسے کہ عمروں میں عدل ہے، اور علم اور ثلاثو و مثلث میں صفت ہے، اور عدل ہوں، میں تانیث ہے الف مکسورہ کے ساتھ، اور حمراء میں تانیث ہے الف ممدودہ کے ساتھ، اور یہ مؤنث دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ ہوں۔ جی اسامہ بیٹا اس کی وضاحت کریں، منصرف ہو گیا ہے منصرف کی۔ آج آپ حضرات نے سبق پڑھنا ہے اور آپ نے دہرانا ہے اس کو، اسامہ بھی اس کو وضاحت کریں اس کی۔ سجی لکھا ہے منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے جو اسباب ہیں ان میں سے کوئی ہاں سبب بھی نہ ہو، اور غیر منصرف وہ ہے جس جی، کے نو میں سے دو اسباب پائے جاتے ہیں، تو وہ جو نو۔ منع صرف سے کیا مراد ہے؟ منع صرف سے کیا مراد ہے؟ سجی منع صرف سے مراد ایسا اسم ہے جو تنوین اور کسرہ وہ قبول نہ کرے، ماشاء، ہاں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی جو نو اسباب ہیں وہ آگے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، ہاں الف و نون زائدہ تان، ہاں، اور جو ان اچھا مثال بھی دی ہوئی تو ہے۔ یہ بتائیں کہ سلاسو اور مسلسو یہ کیسے غیر منصرف ہے؟ تو سجی اس کے اندر جو ہے وہ صفت ہے کہ یہ تین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا مثلث کسی چیز کے بارے میں بات ہو، شکل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور دوسرا وصف کون سا ہے اس میں؟ اور سجی دوسرا یہ علم نہیں، عدل ہے۔ عدل ہے جی سجی۔ ہاں عدل ہے نا، دیکھنا کیونکہ عدل ہے، سلاسو و مسلسو یہ بغیر کسی نحوی قاعدے کے آگے ہے، اس میں کوئی قاعدہ نہیں لگا۔ تو ہم نے عدل کی یہ تعریف پڑھی تھی کہ جو اسم بغیر کسی نحوی صرفی قاعدے کے آ جائے وہ عدل، اس میں عدل ہوتا ہے، وصف ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں صفت پائی جا رہی ہے کہ یہ تین ہے، دوسرا اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے کہ یہ بغیر صرفی نحوی قاعدے کے یہ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی سجی۔ آگے اچھا جی، حضرت بھائی اسامہ نے ایک بات کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منع صرف وہ ہے جو تنوین کو قبول نہ کرے، تو یہ کہاں سے بات کی جنہوں نے؟ آپ نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ غیر منصرف کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ وہ منصرف، غیر منصرف جو ہوتا ہے وہ کسرہ اور تنوین کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ پھر تو منع صرف آپ نے پوچھا نا، منع صرف، تو تو منع اس صرف میں سے انہوں نے مراد کہا یہ کہ ہے کہ منع صرف کا، اگر منع صرف کی ویسے لفظی تعریف کریں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو پھیرنے سے روکنا، لفظ میں تبدیلی کو روکنا، اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا با محاورہ اصلاحی ترجمہ کریں نحوی کے اعتبار سے تو پھر کا یہ ہوگا کہ یہ کسرہ اور تنوین کو قبول نہیں کرتا۔
मना सरफ और जी। गैर हमने पीछे पढ़ा ना, लेकिन हमने पीछे पढ़ा ना मुरक्कब बिनाई मुरक्कब मना सरफ, तो वहां तो हाँ, मना सरफ कुछ और था। क्या था वहां पे? मुरक्कब मिनाई तो वो हमने गिनती थी, जब और हम मुरक्कब मना सिर्फ वो था जहाँ से वाव यानी दो जुमलों को मिला दिया गया हो और दरमियान से वाव ना गिराया गया हो, जैसे हाँ बाला बक्का और हाँ। ऐसे ही हाजरा मऊता। तो वहां पे तो सिर्फ मना सिर्फ अच्छा, ऐसे पढ़ा था हमने। वो कौन था? वो उसका मुरक्कब जो था ना? वो बेटा मुरक्कब था, तो यहाँ मुरक्कब तो नहीं है ना, यहाँ मुरक्कब कहाँ है? ये तो ये भी तो देखें ना। अब उमर मुरक्कब तो नहीं है, उमर तो मुफरद है। ये निजामुद्दीन साहब क्या फरमा रहे हैं आप? जी हजरत, वही डाउट था कि इससे उसका जो दूसरा जुज कहता है ना कि वो मुर्रब है, तो मुर्रब तो फिर उसका मतलब है कि उसके अंदर आराब का तब्दीली तो आ रही है, तो फिर हाँ, या तो वो मना सर्फ की डेफिनेशन थोड़ी नामुकम्मल है, क्योंकि ये गैर गैर मुनसरफ के लिए तो कह सकते हैं कि तनवीन और कसरा नहीं कबूल कर सकता, लेकिन मना सर्फ की तो और जो हमें तारीफ वहाँ पे बताई गई कि दो इसमों को मिला दिया गया, उनके अंदर दूसरे इसम के साथ कोई वाव नहीं है, और उसका पहला जुज जो है वो मबनी है, और दूसरा जुज जो है मुर्रब है, तो इसलिए मुहर्रम है। बाला और या उसका बाल और बाल, तो उसका मतलब मुर्रब तो फिर आराब को कबूल करेगा। गैर मुनसरिफ के लिए तो आगे चल के जैसे हम कह सकते हैं कि हो सकता है तनवीन और कसरा न कबूल करे, क्योंकि इसमें दो सिफात पाई जा रही हैं उन कवानीन में से, लेकिन मेरे ख्याल में मना सर्फ के लिए तो उस तरह नहीं कह सकते कि वो नहीं कबूल कर सकता कसरा और मुहर्रम से तनवीन जिस तरह इसका जवाब ये देता हूँ, देखना। वहां पर तो जो ना, जो दूसरा बाला बक्का में दूसरा जो मोरब है, वो है, आपने गौर से अगर इबारत को पढ़ेंगे ना, अक्सर के नजदीक क्या है इसका जो क्या इसका दूसरा जो क्या है मोरब है। ऐसी है निजामुद्दीन साहब, इबारत ऐसी है ना वो वहां पे। जी जी हजरत जी जी। अक्सर के नजदीक मोरब है ना, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इख्तलाफ आ गया। जहाँ अक्सर का लफ्ज आ जाए, या को या इंदल मजहब आ जाए, या इंदर कुफीन आ जाए, वहां मतलब ये होता है कि यहाँ इसके अंदर इख्तलाफ आ गया। अगर आप और इख्तलाफ कैसे है, मिसाल के तौर पर अगर हम उसकी इबारतों में देखते हैं, इस किताबों में बाला बक्का को, तो बाला बक्कुन कहीं भी नहीं आता। ना बाला बक्कीन आता है, ना बाला बक्कन आता है, ना बाला बक्कुन आता है। बाला बक्का, बाला बक्कू, काफ पर पेश आती है या जबर आती है। ठीक है। जी तो सही है। तनवीन को, कसरा को तो वो भी कबूल नहीं कर रहा। ठीक है। देखना, जी सही है। तनवीन को और कसरा को कबूल वो भी नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ जो उसामा भाई ने बात की है ना कि कसरा और तनवीन को कबूल ना करे, ये इससे मुराद है मना सरफ। अगर हम इसको मना सरफ नहीं मानते मिसाल के तौर पर, फिर तो वो मोरब मबनी की कैटेगरी में चला जाएगा ना। क्या ख्याल है? सही सर जी, सही है। वो मोरब साथ वो, इस हाँ जी। तो सर जी जी गैर मुनसरिफ बोले। भी तो मोरब होता है, लेकिन उतना मोरब नहीं होता कि मतलब थोड़ा महदूद मोरब होता हाँ, है, तो इजाजत तो वो भी दे रहे हैं। महदूद यानी इस तरह उस मुरक्कब मना कैटेगरी से, सरफ की। हाँ हाँ, यानी उस कैटेगरी से उसको निकाल देते हैं। है तो वही, यानी कि इसके इराब में यानी कसरा और तनवीन नहीं आएगा, होना तो यही चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जैसे मोर मबनी होते हैं, मबनी पे एक ही इराब रहती हैं। पेश हो फिर भी एक इराब, जबर हो फिर भी एक इराब, जेर हो तो फिर भी एक इराब। ठीक है। लेकिन मना सरफ में ये होता है कि अगर पेश है तो पेश आएगी, जबर है तो जबर आएगी, लेकिन अगर कसरा है तो कसरा नहीं आएगा बस, और ना तनवीन आएगी। अच्छा सर, पीछे हमने हाँ पढ़ा मुरक्कब मना सरफ, यहाँ पे मुरक्कब मना सरफ के मुरक्कब तो नहीं लेकिन मना सरफ के असबाब जिक्र किए गए हैं, हाँ तो हाँ हाँ इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ। तो उन्होंने ना पीछे जो कहा ना मुरक्कब मना सिर्फ, और यहाँ मना सिर्फ, यहाँ गैर मुनसरिफ। ठीक है। उन्होंने इसलिए कहा कि वो पीछे जो हमने जिक्र किए ना, मैंने आपको शायद पहले भी शुरू में दोहराया था कि वो मबनी असल नहीं है, मबनी असल के मुशाबे हैं। ठीक है। ये यहाँ पर भी जो है ना, ये मबनी नहीं है, लेकिन इसके अंदर मबनी का कोई यानी कि कोई थोड़ा रिश्ता पाया जा रहा है, समझे कि कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक है, लेकिन मबनी की कैटेगरी से ये निकले हुए हैं। ठीक है। और वो जो है ना वहां पे, उनकी मबनी के साथ मुशाबत है थोड़ी बहुती। अब कुछ समझ में आया? उस्ताद जी हजरत मुझे फिर वहाँ पे फिर वही सवाल होगा कि मसाजिद में जैसे मुजाफ या हुरूफ जारा लग गया, तो कैटे उस मसाजिद उस मतलब फिर भी गैर मुनसरफ ही कहलाता है जब कोई जमा कोई के बात सीगा जो पढ़े, है मसाजिद। कोई कोई इबारत पढ़े उसके, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखना, ऐसे तो नहीं, कोई इबारत पढ़ेंगे ना मेरे सामने, इबारत लेकर आएंगे तो मैं उसकी वजाहत करूंगा ना। जी सही है। उस्ताद हाँ, जी जो आप मुझे मिसाल की समझ कोई आई बात। है ना,
हाँ मैं हाँ अर्ज कर दूं जी बोले। जी। ये मुनसरिफ और मोरब में फर्क वो हाँ लिखा हुआ है कि जो मुरक्कब है ना उसमें वो मोरब जो है ना होता है। तो इसमें मुनसरिफ में और मोरब में ये फर्क होता है कि मोरब तो जो है ना वो कोई भी वो कबूल कर लेता है ना। और हम्म, इसमें जो मतलब ये होता है कि ये सिर्फ कसरा और तनवीन जो है ना उसको गैर मुनसरिफ कबूल नहीं करता, मतलब वो फर्क ही है। और इसमें तो हमने क्या किया? दूसरी बात तो जो हम तो इसी पर बहस कर रहे जी हैं। अच्छा जी जी जी, ठीक, वही बोले बोले। मैं रजी कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है ना, मना सरफ के दो असबाब, यानी मबनी से ये बाहर थोड़ा सा इसलिए निकला है कि मबनी में तो वो एक सबब ही हो, तो मतलब वो मबनी होता है। तो गैर हाँ मुनसरफ में ये होता है कि इसमें वो पूरा नहीं होता ना, थोड़ा आधा आधा मिल के दोनों मिलकर फिर जो है ना वो बनता है, मतलब थोड़े थोड़े उसमें होते हैं। दो चलो असबाब होंगे तो फिर ये मना सरफ के फिर गैर मुनसरफ होगा। चलो माशाल्लाह, ये उस्मान अली पढ़ें और दोबारा इसको। मुंसरिफ वो इसम है मना सरफ के असबाब हजरत में से अगर कोई। अगर अगर इस जी तरह जुमला हो, सल्लैना फिल मसाजिद, हाँ। तो फिल मसाजिद में अलिफ लाम में दाखिल सल्लैना हो गया। फिल मस तो अलिफ जी, लाम में तो दाखिल हो गया। इसमें अलिफ लाम तो में दाखिल हो इसमें गया। कसरा, जी अलिफ लाम तो अलिफ तो आ लाम गया में हजरत। दाखिल हो गया। फिर तो अलिफ लाम ने आगे कसरा ने उसको क्या कर दिया? गैर मुंसरिफ से कैटेगरी से निकाल नहीं दिया उसको। तो लेकिन फिर भी हम उसको जब जमा का सीगा में मसाजिद, यानी वो लफ्ज उसमें से पूरे का पूरा नहीं निकल जाएगा चाहे जिस हालत में भी हो। या यहाँ पर भी तो हमने सल्ले मिसाल के तौर पे मस सल्लैना फिल मसाजिदी। जी जी सल्लैना फेल बा फाइल, फी हरफ जर, अल मसाजिदी मजरूर। जार मजरूर मिलकर फी सल्लैना के क्या हो गया, मुताल्लिक हो गया। अगर हम पढ़ते सल्लैना मसाजिदा, जी जी सल्लैना मसाजिदा, फिर मसाजिदा आता। अगर इसके ऊपर हम अलिफ लाम भी ना दाखिल करते और हरफ जर, बेशक हरफ जर दाखिल करते, लेकिन अगर अलिफ लाम दाखिल ना, सल्लैना फी मसाजिदा, फिर ये बननी थी बात। ठीक है। सल्लैना फिल मसाजिद पढ़ेंगे तो फिर आपको कसरा देना पड़ेगा, क्योंकि अलिफ लाम ने आके उसको गैर मुनसरिफ की कैटेगरी से निकाल के मुनसरिफ बना दिया। ठीक है। और यानी अगर वो पूरे अगर का हम पूरा अलिफ लाम, लफ्ज। हाँ, अगर हम अलिफ लाम नहीं दाखिल करते तो सल्लैना फी मसाजिदा हो जाएगा। उसमें से अदर सवाल ये रह गया कि आराब की तब्दीली से क्या वो पूरा लफ्ज गैर मुनसरिफ की पूरी उस कैटेगरी में से निकल नहीं जाएगा, या फिर भी रहेगा कि किसी सूरत में जब कसरा नहीं होगा तो वो गैर मुनसरिफ कहलाएगा, और जब कसरा आ गया तो फिर उस टाइम वो गैर मुनसरिफ नहीं कहलाएगा? ऐसे है, या पूरे का पूरा तो वो ना लफ्ज उस गैर मुनसरिफ? मैं मैं किताब है, उस किताब में ना लिखा हुआ है उन्होंने कि गैर मुनसरिफ के ऊपर ये चीजें दाखिल हो जाएं तो वो ये मुनसरिफ बन जाता है। वो मैं आपको ना सेंड कर देता हूँ, ठीक है? जी जी सही जी, सही। फिर आप उसमें देख लेना। हाँ ठीक। क्या उस्ताद मोहतरम, जी जी। जो है ना, मैं जो है ना कमज़ोर साथी हूँ, चाहे अच्छा ऐसे जी ये पूछ रहा था कि जो है ना जो बातें हो रही थी ये तो मेरे तो ऊपर से जा रही हैं। यानी कि अच्छा। उस्ताद जी मैं चलो थोड़ा कोई सा बात। वक्त नहीं निकालता, यानी कि बस ऐसे समझे हाँ तो तो इस अच्छा, वजह से ऐसा कर, मैं मुझे पर्सनल पे कॉल कर जी जी लेना, वो आपका बात जी जी, करते ना, और ये ये सबक चल रहा उस्ताद जी की जी नुस्खा सबक है बताइएगा कमजोरी दूर करने का। अच्छा हजरत, जी हजरत अमार साहब उस्ताद से ये मोहतरम। पूछें कि ये तैयारी क्यों नहीं करते। हजरत मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। ये अमार है। साहब सिर्फ स्कूल जाते हैं, स्कूल अब तो स्कूल से भी छुट्टियां मेरा ख्याल है इनको। के असबाब में से कोई सबब उसमें ना हो, और गैर मुनसरिफ वो इसम है कि मनासरफ के असबाब में से दो सबब उसमें हों, और मनासरफ के असबाब नौ हैं: अदल और वसफ और तानीस और मारफा और अजमा और जमा और तरकीब और वजन और वजन फेल और अलिफ और नून। मजीद तान जैसा कि अमरू में अदल है, और इल्म और अलम अलम अलम। अलम, अच्छा, अदल है और अलम है। और सुलासा सुलासु व मसलसु में सिफ्त है और अदल। और तलहतु में तानीस है और इल्म अलम। और जैनबू में तानीस। बस जैनब में तानिश माने में, ठीक हो? हम्म, जी। यहाँ तक अच्छा हजरत कोई इसमें, मुश्किल है? जी जी पूछें। हजरत इसमें ये था कि
منع صرف کے اسباب میں سے دو یا کوئی ایک پایا جائے؟ حضرت جو ایک والی بات ہے اس کتاب میں نہیں ہے، اور جو وہ ایک ہے وہ کون سے ایک سبب جو وہ پایا ایک جائے تو پھر وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے، وہ کون سا سبب ہے جی؟ وہ 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 ایک سبب ہوتا ہے دو سببوں کے قائم مقام، جیسے مساجد، ٹھیک ہے؟ بس وہ ان نو میں سے ایک ہی ہے جی بس وہ؟ وہ اور میں بھی آتا ہے، اور بھی سیگے آئیں گے آگے جب اس کی وضاحت آئے گی۔ نہیں حضرت یہ وضاحت کہاں آئے گی جی؟ یہ وضاحت ہماری کتاب تو مکمل ہو گئی ہے نا جی۔ تو یہ نیچے چل رہی ہے نا وضاحت، بیٹا چل رہی ہے، اب اس کی مثالیں دیکھنا، آپ اس کی مثالیں خود ڈھونڈیں گے نا، جب اجرا میں استاد اجرا کرواتے تو جب غیر منصرف پہ آئے گا تو استاد آپ کو بتائے گا کہ یہاں مساجدو ہے، فلاں ابراہیمو ہے، اور مکاتبو ہے، ایسے سے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جمع اچھا منتخل جموں کے حضرت جتنے بھی سیگے ہیں نا، وہ جی، ایک سیگا ہی دو کے قائم مقام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو نو اسباب ہیں ان میں سے دو اسباب پائے جائیں، یا کم از کم ایک اسباب ایسا پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو۔ جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے ان نو میں سے یہ جمع والا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ جمع منتہل جموں والا، جمع منتہل جموں والی یہ صورت حال ہے۔ جی، اس کے علاوہ دوسرے تو دو ہی ہوں گے تو پھر ہی ہوگا وہ غیر ہاں، منصف۔ دوسرے دو ہی ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ پیچھے سے پڑھنا ہے یا آگے یہی پڑھنا ہے؟ پیچھے سے تھوڑی ہاں جی کروا دیں۔ ہاں جی، ہاں جی، کروا دیتے ہیں جناب، پیچھے سے تھوڑی سی یاد یاد کرواتے ہیں، کتاب نکالیں۔ بول ہی نہیں رہے جی۔ نہیں نہیں، بولنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، لے، یہ تو پہلے ہی نکالے بیٹھے تھے یار، بڑے تیز ہو۔ ہاں، قبل و بعد، پڑھے پھر آپ ہی، عثمانی صاحب پڑھے۔ جی جی، قبل و بعد، جیسا کہ جب کہ مضاف ہو اور مضاف الہی متکلم کی نیت میں ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل و من بعد، ہاں ای من قبل کل شیء۔ ہاں، اچھا، یہاں پر میں نے آپ کو ای سے کوئی یاد آیا؟ میں نے آپ حضرات کچھ بات بتائی تھی، یہاں تقریر کی تھی ای سے، نظام الدین صاحب، تفسیر عثمان علی، حضرت، تفسیر ہاں، تفسیر ماشاء اللہ، ای سے مراد یہ ہوتا ہے، ای جہاں آ جائے تو سمجھے کہ ای نے جو ای سے پہلے والی عبارت ہے، ما قبل کی عبارت کی، اس نے یہاں تفسیر کر دی ہے۔ تو للہ الامر وہ کہتا ہے قبل اور بعد، جبکہ مضاف اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو۔ لفظوں میں متکلم کی نیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بات جو آگے آپ نے قبلو اور بادو یہاں پر آ جائیں، ان کے بعد جس لفظ کو آپ نے لے کر آنا ہے وہ لفظ لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں موجود ہے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ آپ بول رہے ہیں، جیسے ما رأیت من قبل آپ نے یہاں پر آ کے بات کو روک دیا، من قبل پر آپ نے بات کو روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو بات آپ نے کرنی ہے نا، وہ بات آپ کے ذہن میں موجود ہے پہلے سے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں انہوں نے یہ عبارت کہی ہے للہ الامر من قبل و من بعد، یہ یہاں پر آ کے من قبل و من بعد پر آ کے عبارت خاموش ہوگی۔ اب آئی نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ذہن سے پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمانا تھا من قبل کل شیء، ٹھیک ہے، ومن بعد کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر چیز سے پہلے بھی اور ہر چیز کے بعد بھی، ٹھیک ہو گیا؟ تو قبل اور بعد اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کہ یہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ متکلم کے جو آگے جو مضاف الیہ آنے والا ہو وہ متکلم کے ذہن کے اندر پہلے سے موجود ہو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی اس عبارت کی تشریح؟ جی جی، عثمانی صاحب، نظام الدین صاحب، عثمان درے، عثمان علی بھائی بتائیں۔ اس میں حضرت وہ کوئی خاصیت والی عبارت ہوگی، یا یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے ذہن میں ہوگی، تو یہ ہم نے جیسے آیات قرآنی کی بات آئے گی تو اس میں سے نکالا جائے گا کہ یہ ہے، جیسے اللہ جل شانوں کی طرف کوئی چیز منسوب ہو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو وہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح ریلیٹڈ ہو، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی تو ہم کہیں گے زمین و آسمان اور باقی جتنا کچھ ہے۔ ہاں، یہ وہی بات کر رہا ہوں نا، یہ اس وقت ہوگا، یہ قبل اور بعد کا جو آگے والی عبارت کو اس وقت حذف کیا جائے گا جب وہ بات آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوگی نا۔ اب بات سمجھ میں صحیح آ ہے، رہی؟
यानी वो चीज पहले से जी आपके जहन में कंसेप्ट है, लेकिन आपने इबारत को छोटा करने की गर्ज से आपने कबल और बाद के बाद जो मुजाफ ले आ रहा था ना, उसको आपने जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, आगे नीचे चलें थोड़ा सा, आगे आगे कोई और चीज आ जाए आपको पता चल जाएगा खुल के। थोड़ा नीचे करें कि मिसाल और आ रही है, ये दे। आ जैसे अना हाजिर मिन कबल, यानी मिन कबल का, मैं पहले से हाजिर था, किससे भी, तेरे से पहले से हाजिर था। अना हाजिर मिन कबल, मिन कबल का, मिन कबली का भी कह सकते हैं, कबली हाजा, इससे पहले मैं हाजिर था। कबली कुम, तुम सबसे पहले मैं हाजिर था। कबली की, तुझे एक औरत से पहले हाजिर था। यानी जो आपके जहन में वो बात होगी ना, वो आगे हजफ हो जाएगी। मिन बाद कुल्ली शैइन, और आगे मिसाल है, जैसे अना हाजिर मिन कबल, यानी अना हाजिर मिन कबली का, मैं हाजिर हूँ, मैं किसी को बता रहा हूँ ना। मैं अब मैं मिसाल के तौर पे, मैं बात किन से कर रहा हूँ, आप हजरात से बात कर रहा हूँ ना। तो मैं कहूंगा कि भाई, अना करातु मिन कबल, अना करातु मिन कबलिकुम, मैंने तुमसे पहले पढ़ लिया। या अना दखलतु मिन कबलिकुम, ठीक है, मैं तुमसे पहले दाखिल हो गया। तो इस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ, इसका मतलब ये है कि जो मुजाफ इलैह बन रहे हैं वो आप हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप किसी से मुखातब होंगे, तो आपके ज़हन में फौरन आ जाएगा कि मेरा मुखातब जो है ना, ये मेरा मुजाफ है। या किसी और के बारे में आप कोई बात, किसी की चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो समझे आपके जहन में वो बंदा है, वो चीज है, तो वो आपका मुजाफ इलैह है जो आपके जहन के अंदर मौजूद है। जी। हाँ जी, क्या मैसेज किया अभी किसी ने? जी माशाल्लाह, अच्छा लिखा है। अच्छा अभी, हाँ भी, समझ में आई बात? सारे खामोश हो गए यार। जी जी मेरे ख्याल से समझ नहीं आई इसी निजामुद्दीन वजह साहब, से। उस्ताद जी गौर व फिक्र नहीं कर समझ रहे में हैं। आई? अच्छा दोबारा फिर देखिए, उस्ताद उस जी इबारत को इनकी पढ़ें आप। उस्ताद जी निजामुद्दीन जी ये साहब, उस्ताद समझ आ निजामुद्दीन गई, आसान है, साहब, बहुत आसान है ये तो। हाँ। मतलब है कि ये इसमें तो ये अच्छा तो चलो एक बहुत दफा, आसान है ना, कि एक बंदे ने वो बात हाँ वो जो है ना, ये आगे वो इल्म गैब में आ गई ना बात सारी। मतलब है वो बात अभी गायब है और उसने वो जेहन में है, उसने वो उसकी बात तो कर रहा उस्ताद है। जी तो मुजाफ तो इलैह उस्ताद तो होता है ना, मतलब आम तौर पर उर्दू में जो है ना वो की के आता है ना दरमियान में। तो जैसे ये अमार की बात है, तो हाँ तो अमार जो है ना ये मुजाफ इलैह हो गया ना। तो हाँ। मतलब मैं कभी बोलने लगा था अमार के बारे में, तो ये अमार जो है ना ये मतलब मुजाफ इलैह हो गया, जहन में था कि मैं अमार की बात करूं। भाई, कबलू और बादू नहीं, को आप बात याद रखें। जहां पर भी कबलू और बादू आएगा और आगे इबारत महसूफ होगी, इसका मतलब ये है कि जो बंदा बात कर रहा है, उस बंदे के बात करने बाद जो बंदा बात कर रहा है, उस बंदे के जेर में है आगे मुजाफिल है पहले से। ठीक है, जी बस। तो उसके जेर में पहले से मुजाफिल माजूफ है, तो उसने लफ्जों में उसको जिक्र नहीं किया। अगर उसने जिक्र कर दे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मसला ही नहीं। अगर उसने जिक्र नहीं किया, तो फिर ये कबलू और बादू, कबलू पर भी पेश होगी, बादू के ऊपर पेश होगी, और मुजाफिल है उसके बंदे के जेहन के अंदर होगा। अभी आगे मैंने क्या आपकी बात पढ़नी, यही इसके अंदर, और कोई मुश्किल बात नहीं है इसकी। जी आगे चलें, मजीद पूछ लेना उस्ताद इसका, जी एक इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। थोड़ी सी इसकी इसकी वजाहत कर देंगे? हाँ, किसकी? जी ये लिखा हुआ है जी, कबलू व बादू की हाँ। 3 हालतें हैं, 2 हालतों में मोरब और एक हालत में मबनी है। नंबर 1, अगर हम्म। कबल बाद मुजाफ हूं तो मुजाफ इलैह मजकूर हूं तो मोरब होंगे। अगर कबलू बाद मुजाफ हूं तो मुजाफ इलैह महजूफ नसियन व मनसिया हो तो मोरब होंगे, जैसा कि रब्बू बाद इन काना खैरन बिन कबलिन। वो और ना कबलू ऐसा है, बाद मुजाफ हूं और मुजाफ इलैह महजूफ मानी हूं तो मबनी होंगे। इसकी तरफ थोड़ी सी वजाहत कर दे। उसमें आप ना जाएं, उसमें आप फंस जाएंगे सारे कैटेगरी में ठीक है, जाके। चले ठीक है ठीक तो है। मैंने आपको
आसान आसान करके समझा दी, एक चीज आसान करके पेश कर दी जाए तो फिर उसमें जरूर जाना है आगे। जी ठीक, फिर तीन जी कैटेगरियां ठीक बन हो, वो खुलेगा आगे जाके। हाँ, तो मैंने आपको ये बता चलें दिया कि ठीक। जब तो एक तो लफ्जों में जब जाहिर हो गया, नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको। एक तो लफ्जों में जैसे मिन कबल व मिन बाद, लफ्जों में जाहिर ही नहीं है, लफ्जों में जिक्र नहीं है, उस वक्त मुतकल्लिम के ज़हन में है वो, ठीक है। दूसरा ये है कि जब वो लफ्जों में जाहिर हो जाएगा उसको, उस वक्त वो मुतकल्लिम के ज़हन में नहीं होगा, मुतकल्लिम ने उसको जाहिर कर दिया। जैसे मा राई तु मिन कबली का, मैंने आपको इससे पहले, मिन कबली हाजा, मैंने आपको इससे पहले नहीं देखा। मा राई तु मिन कबली हाजा, मैंने आपको इससे पहले नहीं देखा, ठीक है। तो इस वक्त ये है कि इस वक्त ये लफ्जों में जाहिर हो गया। अब ये जो है ना, अब मुतकल्लिम के ज़हन में नहीं है, ठीक है। एक सूरत हाल इसकी ये है कि जब ये लफ्जों में जिक्र हो जाए तो उस वक्त ये मुअरब होता है, उसके ऊपर इराब होता है। दूसरी सूरत ये है कि जब लफ्जों में जिक्र ना हो, लेकिन लफ्जों में जिक्र ना हो लेकिन मुतकल्लिम के ज़हन में हो, उस वक्त ये होगा, मबनी होता है बस। जी, आगे। ज़र्फ़ मकान आ गया। कितना टाइम बचा है अभी? क्लास में कितना टाइम बचा है? जी 10 मिनट से थोड़ा सा कम। 10 मिनट बटा है, पढ़ लेंगे आगे ना। जी। अच्छा, अभी साथी किसने ने अभी तक पढ़ा इसमें? साथियों में मोहसिन साहब भी, मोहसिन साहब भी पढ़ लेते हैं माशाल्लाह कभी कभी। ये कैसर बादशाह पढ़ेंगे, कैसर बादशाह, कैसर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। भाई माशाल्लाह पढ़े ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ मकान। हाँ साजी सही पूछे तो मेरा चश्मा सही से ना नजर नहीं आ चलो, रहा। चलो ठीक हो। असल में मोहसिन वो साहब पढ़े दूसरा टूट गया था, चलो ये कोई दूसरा है। नहीं, ये मोहसिन ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ हाँ मकान हैफ़ु क़ुद्दामु ख़ल्फ़ु तहतु फ़ौक़ु इंद ऐन लदा लदुन। अच्छा, मोहसिन साहब ये बताएं कि हम पढ़ क्या रहे हैं? ये ज़र्फ़ मकान पढ़ रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं, ये मोरो पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं। जो लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ दिया। वो तो पढ़ दिया है। मैंने कहा ये बहस किसकी चल रही है, मोरो की चल रही है, मबनी की? किसी को पता है साथी को? उस्ताद जी इसमें जी गैर हजरत मुतमक्किन मबनी की की इकसाम जो है वो पढ़े। मबनी की भाई हजरत। वो किस्म पढ़ रहे हैं जो मबनी असल के मुशाबे हैं, जो मुशाबे। मबनी के मुशाबे चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी, जी तो जो आगे इनकी हजरत जो है ना, जी हम्म, आगे इनका इस्तेमाल है जी, हैसु से। हैसु, हैसु अक्सर जुमला की तरफ मुजाफ होता है, जैसे इजलिस हैसु जैदुन जालिसुन, यानी इजलिस मकाना जुलूसी जैदिन। तो वो कहते हैं कि हैसु जो होता है ना, ये अक्सर मुजाफ होता है, ठीक है। और मुजाफ आगे जो मुजाफ इलैह होता है वो उसका पूरा जुमला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल होता है, साथियों की आ रहा होगा तो भाई मुजाफ इलैह तो मजरूर होता है। मजरूर ये उस सूरत के अंदर होगा जब वो अकेला इसम होगा, ठीक है। यहाँ जब पूरा जुमला मुजाफ इलैह बन रहा हो तो वो अपनी पूरी असली हालत में ही रहेगा, ठीक है। जो जुमले के इराब होंगे वही इराब होंगे, ठीक है। जैसे इजलिस तू बैठ है, सु जैद, जहाँ जहाँ जैद बैठा है या जिस जगह पे जैद बैठा हुआ है, यानी आगे उन्हें तशरीह कर दी, यानी इजलिस मकान जुलूसी जैदिन। तकदीरी इबारत इसकी ये बनेगी, ठीक, असल इबारत इसकी ये बनेगी, ठीक है, अगर इसको असल जो है कैटेगरी के अंदर लेकर आए। कुद्दाम व खल्फु, ठीक है। कुद्दाम कहते हैं आगे, खल्फ कहते हैं पीछे। जैसे कामन नासा कुदामु, लोग सामने खड़े खड़े हुए। और खल्फू की मिसाल जैसे कुदाम व खल्फू, आप इसको ये भी कह सकते हैं, कुदामू भी और व खल्फू, अगर इनको दोनों का तर्जमा ये करें कि लोग आगे और पीछे खड़े हैं। अगर इसका अकेले का तर्जमा करें, लोग आगे खड़े हैं, खुद कामन नास कुदामु, लोग आगे खड़े हैं। कामन नास खल्फू, लोग पीछे खड़े हैं। अगर इन इकट्ठे इकट्ठा तर्जमा करें तो इबारत ये बनेगी कामन नासा कुदामु व खल्फू, लोग आगे और पीछे खड़े हैं, यानी कुछ लोग आगे खड़े हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हैं, ठीक है। यानी जी कुद्दामहु व खल्फहु। ठीक हो गया। हाँ, तो इसकी यानी कुछ लोग उसके पीछे खड़े थे, कुछ आगे खड़े थे, जाहिर है कि दरम्यान में कुछ चीज थी ना,
تو پھر ہی کچھ لوگ آگے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے. درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوگی, لوگ کھڑے ہیں تو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا لوگ کیسے کھڑے ہیں. پھر تو ایک قطار میں کھڑے ہوئے ہیں یا ایک دائرے میں کھڑے ہوئے ہیں, ان میں کوئی نشاندہی نہیں ہوگی. درمیان میں کوئی چیز ہوگی نا, تو کچھ لوگ اس چیز سے آگے ہیں, کچھ لوگ اس سے پیچھے ہیں. تو ہوز میر سے اس کی وضاحت کر دی کہ بھئی کچھ اس کے آگے تھے کچھ پیچھے تھے. یہ ظرف جی. مکان ہو گیا نا, مطلب وہ اس جگہ ایک جگہ ہاں کو وہ بتا دیا نے. ہاں جی, ظرف جی. مکان ہو گیا. تحت و فوق, جیسے جلس ہاں زید تحت و سعید ہاں امر فوق. ہاں. زید جو ہے ای نا تحت وہ الشجرۃ. نیچے بیٹھا, اور امر جو ہے نا وہ اوپر چڑھ رہا, چڑھا. جی. زید نیچے بیٹھا, مطلب تحت کہتے ہیں جو جگہ نیچے ہوتی ہے اس کو. اور ہاں, جو فوق کہتے ہیں اوپر کو. فوق ہوتا ہے وہ اوپر. انگلش میں اس کو ہاں صحیح فوق جو ہوتا ہے اس کو اباب کہتے ہیں غالباً, پتہ نہیں, اور آن بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں اب کون صحیح آئے گا. دو اچھا, لفظ استعمال چلو ہوتے ہیں. چلو مطلب ایک ٹھیک فوق ہوگا یہ فوق اللہ آپ. اس ساری اوپر چیز پڑی ہو, مطلب اس کو فوق کہیں گے, یا اوپر تھوڑی فاصلے پہ ہو تو اس کو فوق کہیں گے. یار اس کے بارے میں تو آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں. فوق سے مراد اوپر ہوتا ہے مثال, اور تحت کے مراد نیچے ہوتا ہے. پھر آگے جو کیٹیگری ہیں وہ تو آپ ہی نشاندہی کریں گے. میرے خیال میں فوق چلو. جو ہے نا یہ فاصلے کے ساتھ ہوگا, جیسے آسمان فوق ہے. اور جو ہاں, اللہ ہوتا ہے وہ اوپر ساتھ پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے. میرے ذہن میں یہ ہے. اللہ تو اوپر ہوتا ہے نا, فوق ہوتا ہے کسی چھت کے اوپر کوئی چیز پڑی ہے نا. مطلب وہ اللہ سے تھوڑی. مراد ہے. ہاں, اللہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے اوپر غلبہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے, کوئی چیز آپ کے اوپر غلبہ کر رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں اللہ. یہ اس کے لیے اللہ استعمال ہوتا جیسے جو ہے نا وہ کہیں گے کہ جو ہے نا وہ قلم کتاب پر ہے, تو ویسے ہی کہنا ہے. کہ ہاں, قلم الل کتاب. نہیں ایسے مطلب نہیں, فوق کہیں گے. نہیں اچھا, الل, ہاں فوق آئے گا, اللہ نہیں یہ آئے گا. اوپر کہنے پر کھلا رہا تھا, پر کے ہوتا ہے. ہاں, اللہ پر کے لیے آتا ہے, اور فوق کے لیے فوق استعمال ہوگا, اوپر کے لیے فوق استعمال ہوگا. چلو ٹھیک ہے, اللہ جیسے تعالیٰ آپ آپ. تمام حضرات کو. تو بھئی آج جزاک ماشاءاللہ جمعہ, ہاں جمعے کا دن تھا, مبارک دن تھا. تو